St. Wilfred College of Arts, Commerce, Science, Shedung Panvel have started a lecture series. My lectures, my name is Rashmi Mhatre from CSIT department. Subject name is Software Project Management and it is 15th lecture. The software start with the topic testing. Software testing is a method to check whether the actual software product matches the expected requirement and the ensure that software product is defect free. It involves the execution of software system component using manual or automated tools to evaluate one or more properties of interest. The purpose of software testing is to identify errors, gaps, or missing requirements to contrast to actual requirements. What happens here? Here in software testing, the methods check whether the actual software product matches the acceptance, or we can say the requirements of the person who is giving this requirement. हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट जो भी हम इंश्योर करें वो डिफेक्ट फ्री हो, उसमें क्या एग्जीक्यूशन हो सकता है सॉफ्टवेयर का, कंपोनेंट हो सकते हैं, मैनुअली ऑटोमेटेड टूल इवेलुएट करना हो सकता है, या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. द पर्पस क्या है टेस्टिंग का कि उसमें जो मतलब जो आइडेंटिफाई क्या करना है हमें, एरर्स, गैप्स या मिसिंग रिक्वायरमेंट्स है उसको हमें एनालाइज करना है और एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको सेट करना है. So some prefers are saying that software testing as a white box testing or the black box testing. In simple terms, software testing means the verification of application under test. This tutorial introduces the testing software of our audience to justify its importance. Now, एक तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग प्रेफर हम कर सकते हैं या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, जो भी टेस्टिंग हो रही है वो हम देख सकते हैं, या जो भी टेस्टिंग हमें करनी है वो हम देख सकते हैं. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम नहीं देख सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं. इट इज नॉट टैंजिबल, हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते. व्हाइट बॉक्स पे टेस्टिंग में इट्स टैंजिबल, हम उसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. Next is software reliability means operational reliability. Software reliability means operational reliability. It is described as the ability of a system or the component to perform its required functions under strategic condition for the specific period. Software reliability is also defined as a probability that a software system fulfills its assigned tasks in given environment for a predefined number of input cases, assuming that the hardware and the inputs are free of error. RS, जो SR हम बोल सकते हैं, जो software reliability है, is an essentially connected to a software quality composed with functionality, usability, performance, serviceability, capability, installability, maintainability, and documentation. Software reliability is hard to achieve because the complexity of software turns to be high, while any system which is high degree of complexity containing software will be hard to reach a certain level of reliability. Systems developers tends to push the complexity into a software layer with the speedy growth of system size and easy of doing so by upgrading the software. यहाँ पे reliability है मतलब operational reliability हम बोल सकते हैं, जो describe करेगा availability of components of the system का performance के हिसाब से. ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फुलफिल करता है जो सिस्टम को टास्क असाइन किए गए इन अ गिवन एनवायरनमेंट, या प्री डिफाइंड हम बोल सकते हैं जो इनपुट केसेस हम देते हैं, हमें अज्यूम करना चाहिए कि जो भी हार्डवेयर फ्री हो, जो हार्डवेयर बनेगा, जो हार्डवेयर इसमें रिएक्ट करेगा, जो भी इनपुट देंगे वो एरर फ्री होना चाहिए. इवन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी ये भी एसेंशियल कंटेंट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी का, जिसमें बहुत सारी चीजें कंपोज रहती है. हम बोल सकते हैं उसमें फंक्शनलिटी है, यूजेबिलिटी है, उसका परफॉर्मेंस है, सर्विस,
कैपेबिलिटी, इंस्टॉलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा हार्ड है इसको अचीव करना, बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टर्न्स टू बी हाई। उसके जो सॉफ्टवेयर का जो कॉम्प्लेक्सिटी वो कभी कभी हाई हो जाती है, उसको बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो सॉफ्टवेयर में कंटेनिंग, जो सॉफ्टवेयर में कंटेनिंग है, वाइल द हार्ड टू रीच द लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। तो उसको थोड़ा सा रिलायबिलिटी पे हमें पहुंचने में थोड़ा सर्टेन टाइम भी लग सकता है। जब क्या होता है, फिर सिस्टम डेवलपर्स थोड़ा सा पुश करते हैं उसके कॉम्प्लेक्सिटी को, जो सॉफ्टवेयर लेयर्स को, कि स्पीडी ग्रोथ हो सिस्टम के साइज में भी, और जो भी इजी डू है, सो जो अपग्रेडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर है वो अच्छे से हो जाए। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी हार्ड नहीं है, बट उसको मेंटेन करना उसको मेंटेन करना बहुत थोड़ा सा हार्ड है। ओके, नेक्स्ट, क्वालिटी प्लान्स क्या हो सकता है? एवरी प्रोडक्ट, every software or every project delivers something at the end of the project execution. When it comes to the project initiation, the project management and the client collaboratively define the objectives and the deliveries of the project together with the completion timelines. During the project execution, there are a number of project deliveries made. All these deliveries should adhere to certain quality standards as well as the specific client requirement. Therefore, each of these deliveries should be validated and verified before delivering to the client. For that, there should be a quality assurance function which runs the start to the end of the project. When it comes to the quality, not only the quality of the deliveries that matters the most, the process of activities that produce deliverables should also adhere to certain quality guidelines as well. क्वालिटी हम जब प्लान करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट क्वालिटी मेंटेन क्या करती है, एंड ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है। जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, तो उसके बहुत सारे क्लाइंट और मैनेजमेंट कोलैबोरेट करके उसके डिलीवरी, मतलब डिलीवरेबली सोच करते हैं। मतलब एक टाइम कंप्लीशन के बाद एक प्रोजेक्ट बनना है, तो उसको कैसे डिलीवर करना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो प्लान करना है। जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवरी बोलते हैं ना, डिलीवरीज बनते हैं, और इस सारे डिलीवरीज को एक सर्टेन अदर होता है, सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है, हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एज वेल एज स्पेसिफिक क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इस क्वालिटीज को या इस डिलीवरीज को वैलिडेट और वेरीफाई करना बहुत जरूरी है बिफोर डिलीवरिंग टू द क्लाइंट। क्यों? अगर ये अश्योर्ड नहीं है, उसके फंक्शन अश्योर्ड नहीं है, विच रन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस ज्यादा है। हम बोल सकते हैं, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या क्या उसके कंटेंट्स है। ओके, when it comes to the quality, not the quality is delivered but that matters the most। जब कोई डिलीवर, हम बोलते हैं ना कि जब कोई डिलीवर होता है तो सिर्फ क्वालिटी नहीं मैटर करता, बहुत कुछ ज्यादा मैटर करता है उस वक्त, क्योंकि क्वालिटी ही चीज है जो बोलते हैं ना, जो जो प्रोजेक्ट को या जो उस प्रोडक्ट को हायर लेवल से लोअर लेवल तक लेके जा सकती है। और गाइडलाइंस उसके जो भी है, सर्टेन गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट क्लोज आउट। Project closure involves handing over the deliverables to your customer, passing the documentation to the business, cancelling supplier contracts, releasing staff and equipment, and information and informing stakeholders of the closure of the project. Now मेरा सारा प्रोजेक्ट बन गया है। लास्ट स्लाइड में हम पढ़ रहे थे कि जब भी प्रोजेक्ट हम डिलीवर करेंगे तो उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी प्लान करके वगैरह सब हमें डिलीवर करना है। तो प्रोजेक्ट क्लोजर आउट पर है, अभी प्रोजेक्ट बन गया है, हमने पूरे सीरीज में सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। सारा प्रोजेक्ट कैसे इन्वॉल्व है, कैसे उसको प्लान करना है, कौन से फेज में टेस्टिंग करना है, सब कुछ, कौन से मॉडल्स यूज करने हैं, कौन से एल्गोरिथम्स यूज करने हैं, एवरीथिंग। अब यहाँ पे हमें लर्न करना है कि प्रोजेक्ट क्लोजर आउट क्या करना है। प्रोजेक्ट क्लोजर आउट क्या इन्वॉल्व करता है? हैंडलिंग अ डिलीवरेबल्स टू द कस्टमर।
जो भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हम बनाया है वो भी कस्टमर को हैंड ओवर कर दो। सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे बिजनेस को पास आउट कर दो। जब पासिंग अ डॉक्यूमेंटेशन टू द बिजनेस मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो हमने बनाया, जो रिस्क हमने एनालाइज किया है, जो भी एरर्स हमने सॉल्व किया है, वो हमें बिजनेस में रखने हैं, उनको पास आउट करने हैं, या हम उसको डॉक्यूमेंट करके उसको एक तो कस्टमर को भी देना है और एक तो हमें अपने खुद के लिए भी रखना है। कस्टमर के क्ल्यू, क्योंकि जो भी इश्यूज हमने जो भी क्लियर की है वो उसको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, पासिंग द डॉक्यूमेंट सॉरी कैंसिलिंग अ सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट। अभी जब प्रोजेक्ट बन रहा था बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, फिर बाहर के जो भी बंदे जो उसमें फिर स्टाफ्स थे, हेड मैनेजर्स थे, ऑडिटर्स थे, टेस्टर्स थे, many peoples were there involved in this project। तो सबको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे अभी कैंसिल करने हैं। आई हैव टू स्टॉप दैट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स या जो भी सप्लायर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, नाउ आई हैव टू स्टॉप इट, आई हैव टू एंड इट। सारे जो पेमेंट बिल्स थे, हम बोल सकते सारे बिल्स थे, या फाइनेंशियल क्लोजर आउट जो हम बोलते हैं वो यही है। सारे बिल्स क्लियर करने इम्पोर्टेंट है हमें इस स्टेज पे। देन रिलीजिंग स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स, जो भी स्टाफ था उनको रिलीज करना है। हम बोल सकते हैं सारे इक्विपमेंट्स को रिलीज करना है अभी। नेक्स्ट इज एंड इन्फॉर्मिंग अ स्टेक होल्डर ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टेक होल्डर में बोल सकते हो एक तो कस्टमर्स है, या जो भी सप्लायर्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स देते हैं, जो भी है, क्लाइंट है, उसको अभी हमें इन्फॉर्म करना है कि प्रोजेक्ट हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट बन गया है। नाउ वी हैव टू क्लोज द प्रोजेक्ट बिकॉज प्रोजेक्ट इज डन। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। अभी प्रोजेक्ट बनने के बाद तो उस क्लोजर की चेकलिस्ट क्या क्या है, is used to project managers to evaluate the business outcomes when formally closing a project. It helps access project activities such as actual performance versus baseline objectives, unaddressed issues, and lessons earned within a project life cycle। अभी उसके क्या क्या चेकलिस्ट है, या प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, या प्रोजेक्ट क्लोज आउट की चेकलिस्ट क्या है। हम मैनेजर्स क्या करेंगे सारे प्रोजेक्ट्स के, जो एवेलुएट करेंगे सारे बिजनेस आउटकम्स व्हेन फॉर्मली, जब ये प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है। इट विल हेल्प टू एक्सेस द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ओके, वो क्या है उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बेसलाइन ऑब्जेक्टिव्स, अनएड्रेस्ड इश्यूज में सो जो इश्यूज है जो हमने एड्रेस करने थे वो हम नहीं कर पाए वो, फिर जो भी हमने लेसन लर्न किया इस पूरे प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में उसको। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ओव दिस थिंग्स। ये सारी चीजें हमें एटलिस्ट करनी है। और फिर रीजंस क्या होने चाहिए प्रोजेक्ट क्लोजर के। सी, project closure helps avoid repeating mistakes on further projects and objectives. Having final products or delivers without the dedicated support and responses. Failure to identify the term or individual who is now and maintain the solution of following final delivery। अभी जब भी प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं अभी उसको डिलीवर करना है, हम उसको डॉक्यूमेंटेट भी कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम जब भी बनाए तो उस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स ना हो, प्रोजेक्ट में इश्यूज ना हो। ठीक है, फिर फाइनली प्रोडक्ट का जो भी हम उसको डेडिकेट कर रहे हैं तो उसके रिसोर्सेज भी सपोर्टेड होने चाहिए। ओके, फेलिंग द आइडेंटिफाई द टीम और द इंडिविजुअल हु विल ओन the maintain the solution following final deliveries। परफॉर्मिंग द फाइनेंशियल क्लोजर, ये हम लास्ट बोल सकते हैं बिकॉज फाइनेंशियल क्लोजर मतलब जो भी प्रोसेस है हमने अभी पढ़ा था, जो कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैंसिल करना है, सप्लायर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर अंडरटेकन एट द एंड ऑफ द मंथ टू क्लोज आउट द करंट पोस्टिंग पीरियड। It consists of tasks and occurs on a periodic basis, every day, period or month.
and it is combination of system that we can say batches, processing and the manual task. यहाँ पे फाइनेंशियल क्लोजर हम बोल सकते हैं कि जो भी फाइनेंशियल क्लोजर होगा, मतलब जो भी हम टास्क को या जो भी हम सप्लायर्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स से, जो भी क्लाइंट से हमने अमाउंट लिया है, कॉस्ट एस्टिमेट किया है या कॉस्ट लिया है, उसका फाइनेंशियल क्लोजर हम बोल सकते हैं। उसको बिलिंग दे रहे हैं हम लोग, जो भी हम इनवॉइस दे रहे बोल सकते हैं, जो भी अमाउंट हम यूज कर चुके हैं या जो भी कॉस्ट एस्टिमेट कर चुके हैं उसका डिटेल्स दे रहे हैं। और ये कॉस्ट एस्टिमेशन या तो जो हम बोल सकते हैं ये फाइनेंशियल क्लोजर कभी कभी एवरी डे होता है कि आज कितना यूज किया हमने, कॉस्ट कितना अमाउंट यूज हुआ, या तो एवरी पीरियड, एक पीरियड फिक्स्ड होता है उसके बाद हम बोल सकते हैं, फेज के बाद भी कभी कभी होता है, एवरी फेज टेस्ट करने के बाद भी होता है, एवरी मंथ होता है, या कोई कॉम्बिनेशन ऑफ बैच खत्म हो जाए तब भी होता है। ये मैनुअल टास्क है या तो ऑटोमेशन टास्क, दोनों में भी ये हो सकता है। मैनुअल टास्क इज बेटर बिकॉज जब भी सामने वाले को हम बताएं तो वो थोड़ा इजीली हो जाता है, becomes little easy to understand आफ्टर दिस। मतलब जो भी प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद हम बोल सकते हैं आफ्टर क्लोजर ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सामने सारे डॉक्यूमेंटेशन है सामने वाले को देने के बाद, मतलब जो क्लाइंट है उनको देने के बाद, एवरी प्रोडक्ट हैज बीन डिफाइंड, मतलब उसको चेक करने के बाद, उसको वैलिडेशन उसके वेरीफाई करने के बाद, फाइनेंशियली या फाइनेंशियल क्लोजर्स करने के बाद, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट क्यों? सी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेट। सेलिब्रेट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द celebration क्यों? तो we have successfully complete the project. Now the project is completed in a successful manner. अच्छा प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट सी यू हैव हर्ड, बहुत बार आप तुम लोगों ने सुना होगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीशन की पार्टी है या प्रोजेक्ट का सेलिब्रेशन हो रहा है, खत्म होने पर हमने क्लाइंट को टाइम से टारगेट दे दिया है। हम टारगेट भी बोलते हैं प्रोजेक्ट्स को, सॉरी, मतलब टारगेट हमने टाइम पे अचीव कर लिया, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दिया है। दिस विल हेल्प टू एनालाइज कि प्रोजेक्ट प्रॉपरली चल गया था, प्रॉपरली चल गया है, मतलब कस्टमर खुश है, हमने जो भी डिलीवर किया है, सारे सप्लायर्स सी। इसमें एक चीज और भी होती है कि अप्राइजल भी होता है, वट एवर टीम पर्सन आते हैं उनको प्रेज किया जाता है उनके कामों के लिए, उनके ओवरऑल व्यू के लिए, उनके नॉलेज के लिए, उनके स्मार्टनेस के लिए कि जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में इन्हांस करने के लिए हेल्प किया है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट क्लोजर रिपोर्ट। Project closeout report is one of the project management document you can create with our project management lifecycle software. This project closeout report is documented to identify the variance from the baseline plan in term of project performance, project cost and schedule. जो हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे, जो हम रिपोर्ट करेक्ट करेंगे, ये सेलिब्रेट से पहले थोड़ा आगे क्रिएट करेंगे, पहले बाद में सेलिब्रेट, पहला रिपोर्ट क्लोजर, रिपोर्ट क्लोज करना है हमें। क्यों? जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जो हम क्रिएट करें, किससे? जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर है उससे, जो डॉक्यूमेंट करेगा कि क्या क्या बेसलाइन प्लान्स हुए थे और क्या क्या हमने पाया। सी कभी कभी ऐसा होता है कि हमने प्लान किया वैसा नहीं हुआ, बट क्यों नहीं हुआ, उसके सारे रिस्क, उसके सारे प्रॉब्लम्स, उसके सारे टर्म्स, प्रोजेक्ट के सारे परफॉर्मेंस, वो हमें उसमें बताना है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट और उसके शेड्यूल्स भी बताने हैं कि ये काम करने के लिए इतना टाइम लग गया, इतना पीरियड लग गया, और दूसरा टेस्टिंग के लिए इतना पीरियड लग गया, प्लानिंग के लिए इतना लग गया, जो भी है डिजाइन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, बेसिक चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए जो काम टाइम लगा है, जो कॉस्ट उसके लिए लगा है, एंड वी नीड टू टेल इट। थैंक यू। आई गेस ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो TYIT का एक्चुअली सब्जेक्ट है उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। सो विल सी विद द नेक्स्ट सीरीज, विद द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।